میں اعجاز سے محبت کرتی تھی پر اعجاز کی شادی میری بڑی بہن سے ہو رہی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر شادی والے دن بڑی بہن کے کمرے میں کرائے کی لڑکی کو بھیج دیا، جس سے میری بہن بدنام ہو گئی اور اعجاز نے بہن کی جگہ مجھ سے شادی کر لی۔ کچھ دن بعد بہن روتے ہوئے میرے گھر آئی اور پناہ مانگنے لگی کیونکہ اماں ابا نے اسے نکال دیا تھا۔ میں نے اسے رحم کھا کر گھر میں جگہ دے دی، پر جب رات آنکھ کھلی تو اعجاز بستر پر نہ تھا اور بہن چیخ رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو کل محمودہ آ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اماں نے ابا کو اطلاع دی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ خیر سے آ رہی ہے تمہاری سہیلی؟ ابا نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے بتایا تو تھا کہ اس کا ارادہ اپنی ماہا کو بہو بنانے کا ہے۔ خیر سے اعجاز کمانے لگا ہے تو باقاعدہ طور پر ماہا کا رشتہ مانگنے آ رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میرا دل یکدم بجھ سا گیا تھا۔ میں نے اعجاز کو لبھانے کی کتنی کوشش کی تھی اور مجھے لگا تھا کہ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا چاہتی ہوں، مگر وہ پھر بھی ماہا کے لیے رشتہ بھیج رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، جم جم آئیں، ابا نے مطمئن ہو کر جواب دیا اور کھانا ختم کرتے ہی پاؤں پسار کر لیٹ گئے۔ اپنی زوہا کا بھی کوئی رشتہ نظر میں ہو تو دونوں کو ایک ساتھ ہی رخصت کر دیں گے۔ ابا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو زوہا کا بھی اچھی جگہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ اماں ابا سونے کو لیٹ گئے جبکہ میرے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں اتنے آسانی سے اعجاز کو ماہا کا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ میری پسند تھا، مجھے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی سی کوشش تو کرنی چاہیے۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ میرا نام زوہا ہے، ہم دو بہنیں تھیں۔ میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا، کاروبار کوئی بڑا زیادہ نہ تھے مگر چونکہ ہم کم لوگ تھے لہٰذا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ سادہ قسم کے لوگ تھے۔ میری بڑی بہن بھی اماں ابا کی طرح سادہ مزاج تھی مگر میں نہ تو سیدھی تھی اور نہ سادی۔ اماں اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ تو بالکل اپنی پھوپھی پر گئی ہے۔ دیکھنے میں ہم دونوں بہنیں ہی خوبصورت تھیں مگر عادت اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں سیدھی بات منہ پر کہنے والی پراعتماد خوش مزاج لڑکی تھی جبکہ ماہا اپنی سوچ اپنے تک محدود رکھنے والی کم گو اور شرمیلا تھی۔ جہاں مجھے نت نئے فیشن اور میک اپ کرنے کا شوق تھا وہاں ماہا کو ان سب چیزوں کا نہ تو شوق تھا اور نہ ہی کوئی سمجھ۔ وہ ہر وقت کتابوں میں گم رہتی۔ اسے مطالعہ کا بہت شوق تھا جبکہ کتابوں کو دیکھ کر ہی مجھے نیند نہ آنے لگتی تھی۔ ویسے تو گھر میں اماں اور ہم بہنیں ہی ہوا کرتی تھی مگر میری ماہا کے ساتھ زیادہ دوستی نہ تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی جبکہ میں اس پر نظر رکھتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ویسے تو اماں ابا کے کافی ملنے جلنے والے تھے جو اکثر اوقات ہمارے گھر بھی آئے رہتے تھے۔ اماں ابا کا خاندان بھی سبھی سے اچھا میل ملاپ اور ملاقات تھی مگر محمودہ خالہ کے ساتھ اماں کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ وہ اماں کی گہری سہیلی تھی۔ دراصل اماں اور محمودہ خالہ ایک ہی شہر میں اور ایک ہی محلے میں بیاہ کر آئی تھیں۔ دونوں کے لیے پورا شہر اجنبی تھا لہٰذا دونوں آپس میں پکی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ اماں کی دوستی محمودہ خالہ سے اس وقت کی گئی تھی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ خالہ کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ان کے بچے بھی ہمارے گھر آتے رہتے تھے اور ہم سب بچے مل کر کھیلتے تھے۔ بچپن میں مجھے سبھی بچوں سے اچھی دوستی ہو جاتی تھی مگر ماہا ہمیشہ الگ تھلگ سی رہتی تھی۔ اسے کھیلنے کودنے کا زیادہ شوق نہ تھا۔ بچپن کے دن گزارے اور ہم بڑے ہوئے تو ہمارے باہر آنے جانے پر کچھ پابندی لگ گئی۔ اب اماں ہمیں اپنے ساتھ زیادہ نہ لے کر جاتی اور گھر چھوڑ جاتی۔ ماہا نے تو پہلے بھی بہت کم آنا جانا کر دیا تھا جبکہ میں پھر بھی اماں کے ساتھ ضد کر کے چلی جاتی مگر ابا کا کہنا تھا کہ اب یہ بھی بڑی ہو گئی ہے لہٰذا اس کو بار مت لے کر جایا کر۔ پہلے محمودہ خالہ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی مگر ساس کے مرنے کے بعد ان کی گھر کا بٹوارا ہوا تو انہوں نے دوسرے علاقے میں اچھا سا گھر بنا لیا۔ محمودہ خالہ کی خواہش شروع سے ہی تھی کہ وہ اپنی اور اماں کی دوستی کو رشتہ داری میں ضرور بدلیں گی اور انہوں نے اپنی یہ خواہش اپنے بیٹے کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے اعجاز کے لیے ماہا کو بہت پہلے پسند کر لیا تھا۔ اب جب کہ اعجاز برسر روزگار تھا تو وہ باقاعدہ طور پر ماہا کا رشتہ لے کر آ رہی تھی۔ اماں ابا کو تو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اماں تو ہمیشہ سے ہی جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ماہا کو پسند کر رکھا ہے، وہ بھلا اعجاز جیسے سلجھے ہوئے لڑکے کے رشتے سے کیوں کر انکار کرتی۔ انہوں نے ابا کو اطلاع پہنچائی تو ابا بھی خوش ہو گئے۔ گھر میں ماہا سمیت کسی کو بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا سوائے میرے۔
मैं माहा को एजाज का होते हुए कभी नहीं देख सकती थी, क्योंकि मैं खुद एजाज पर दिल हार बैठी थी। इसकी सुलझी हुई तबीयत, नफासत और शक्ल सूरत कोई भी चीज़ नज़रअंदाज करने वाली ना थी। वो एक सुलझा हुआ नौजवान था जो इस वक्त खूबसूरत तरीके से बोलता था कि मैं इसको सुनती रह जाती। मुझे मालूम भी ना हुआ था कि कब इसने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया था। वो शायद खुद भी अनजान था। बचपन से लेकर लड़कपन तक मुझे वो इतना ख़ास पसंद ना था, क्योंकि वो भी गुमसुम रहने वाला संजीदा मिजाज का हामिल नौजवान था, जबकि मुझे अपनी तरह शौक चंचल और शरारतें करने वाले बच्चे ही पसंद आया करते थे। जबकि एजाज हमारे साथ खेलना पसंद न करता था, मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मैं इसकी शख्सियत से मुतासर हुए बिना ना रह पाई और मैं इसे पसंद करने लगी। मगर मेरी इस पसंद के बारे में ना तो कोई जानता था और ना ही किसी को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता था, क्योंकि वो सब पहले ही एजाज के लिए माहा को सोच कर बैठे थे। अब अगर माहा बड़ी थी और एजाज की माँ की नज़र करम इस पर आकर रुक गई थी, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं अपनी पसंद यूँ कुर्बान नहीं कर सकती थी। महमूदा खाला अपने पूरे ख़ानदान के समेत अगले दिन ही मौजूद हुई। मैं माहा को देखकर हैरान थी। मुस्कान तो जैसे इसकी लबों से चिपक कर रह गई थी। इसकी चमकती शफाफ रंगत पर सुर्खी छाई थी। महमूदा खाला तो महज रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने आई थी। ये बात तो पहले ही तय थी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अब्बा के सामने माहा का रिश्ता मांगा, तो अब्बा ने सोचने का वक्त भी ना लिया और फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुबारकबाद का शोर उठा तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। कम अज़ कम अब्बा को सोचने के लिए कुछ वक्त तो लेना चाहिए था। मुझे उम्मीद न थी कि अब्बा मौके पर ही हाँ कर देंगे। अब इतनी भी क्या जल्दी थी, कम अज़ कम रस्मी सुलह मशवरे का वक्त तो मांग लेते। मगर मेरी सोच से किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला था। महमूदा खाला ने माहा को बुलाकर अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर इस वक्त इसको पहनाई तो वो शर्म से दोरी हो गई, जबकि मेरा मुंह हलक तक कड़वा हो गया। अम्मा अब्बा भी कुछ दिनों बाद लड़की वाले के घर जाकर रस्म कर आए थे। शादी चंद महीनों बाद होना करार पाई थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जबकि मैं सोच सोच कर हलकान थी। मुझे अब तक कोई तरीका ना सूझा जिसकी वजह से मैं ये रिश्ता ख़त्म करवा सकूं। जैसे मेरे नज़रों के सामने इन दोनों की बात पक्की हुई थी, ऐसे ही माहा ने एक दिन रुखसत होकर चले जाना था, जबकि मैं कुछ ना कर सकती। मैं रोज़ ही अपने आप को कोसती और इस मुसीबत से निकलने की कोई तदबीर सोचती, मगर मुझे अभी तक समझ ना आया था कि मुझे इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए और एजाज के साथ कैसा रवैया अपनाना चाहिए। पहले तो मैं इससे नाराज़ थी, पर मुझे एहसास हुआ कि इसे मेरी नाराज़गी की क्या परवाह। इसकी सारी नाराज़गी और खुशियों का महवर तो माहा थी। लिहाजा मैंने खुद साख्ता नाराज़गी ख़त्म की और इससे फ़ोन पर राब्ता शुरू कर दिया। वो मुझसे बड़ी इज़्ज़त और प्यार से बात करता। यकीनन वो मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह समझता था, मगर मैंने आज तक इसको भाई समझा था और ना ही कभी भाई का दर्जा दिया था। मैं इससे फ़ोन पर फ्री होने की कोशिश करती और माहा के बारे में गलतफहमी में मुबतला करने की कोशिश करती, मगर मेरी कोई कोशिश कामयाब ना हुई। वो मेरी हर बात को हंसकर टाल दिया करता। मुझे समझ ना आ रहा था कि मैं क्या करूं और एजाज का दिल माहा की तरफ से कैसे मैला करूं। मुझे अपने आप पर भी बेइंतहा गुस्सा आता। मुझे यूँ लगता कि मैं यूं ही हाथ पे हाथ रख कर धरे बैठी हूँ, जबकि एजाज माहा को रुखसत करके भी ले जाएगा। मुझे जो कुछ भी करना था इनके रुखसती से पहले करना था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अम्मा अब्बा ने अपनी तमाम जमा पूंजी निकाली। वो चाहते थे कि वो माहा की शादी पर किसी किस्म की कोई कमी ना रखें। अम्मा रोज़ ही बाज़ारों के चक्कर लगाती। माहा तो किसी न किसी तरह अम्मा को बहाना बनाकर टाल देती, तो मुझे अम्मा के साथ जाना पड़ता। वैसे भी अम्मा नहीं चाहती थी कि वो बाज़ारों में खुआर हो। अम्मा का कहना था कि इसके आराम करने के यही दिन है, लिहाजा मुझे अम्मा के साथ बाज़ारों में खुआर होना पड़ता। एक दिन अम्मा ने करीब के मोहल्ले में दुपट्टा रंगवाने को दिया और बाजार से आते हुए वापसी पर दुपट्टा उठाया तो गलती से इसने माहा के दुपट्टे की जगह कोई और दुपट्टा अम्मा को पकड़ा दिया। ओहो, ये तो माहा का दुपट्टा नहीं। अम्मा को घर आकर एहसास हुआ। तो ऐसा कर अभी ये दुपट्टा वापस ले जा, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुपट्टा किसी और को दे दे। अम्मा का हुक्म सुनकर मैं जी भरकर बदमज़ा हुई। क्या अम्मा, मैं भी तो अभी आकर बैठी हूँ, अच्छी खासी थक गई हूँ। मैंने दुहाई दी तो अम्मा खुद उठकर खड़ी हुई। अच्छा, मैं खुद बदल लाती हूँ। मैं जानती थी कि अम्मा की टांगों में कितना दर्द था, लिहाजा मैं खुद ही उठ खड़ी हुई और दुपट्टा लेकर बाहर निकल गई। बात सुने बाजी, अगर आपके साथ कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दें। दरअसल मेरा पर्स कहीं गुम हो गया है और मुझे अपने घर जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। अपने पीछे आती आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर रुकी। वो नौजवान मेरी जानब ही मुतवज्जो था। शक्ल और हुलिये से वो एक अच्छा खासा नौजवान था,
मगर वो मुझसे भीख मांग रहा था। मैं जानती हूँ आजकल भीख मांगने के नए तरीके हैं। मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं। मैंने इसको साफ जवाब दिया और आगे बढ़ गई। मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं भला चंद पैसों के लिए ऐसा क्यों करूँगा? मुझे वाकई मदद की ज़रूरत है। इसने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की तो भी मुझे इस पर ज़रा सा यकीन ना आया और मैं इसे वहीं छोड़कर अपनी मतलूबा दुकान की तरफ बढ़ गई। मैं अपना काम मुकम्मल करके वापस पलटी थी कि वो नौजवान मुझे इसी जगह थड़ी पर बैठा दिखाई दिया। मैं एक लम्हे को इसके पास रुक गई। मैं तुम्हें कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें इसके बदले मेरा काम करना पड़ेगा। मेरी बात सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं काम भी करने को तैयार हूँ। क्या काम है? इसने पूछा तो मैंने पर्स से पैसे निकाल कर इसके हाथ पर रखे। फिलहाल तुम ये रखो, तुम्हें काम जल्द ही बताऊंगी। मैंने इसका नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव किया और घर की तरफ रवाना हो गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। मैंने सारी मनसूबाबंदी कर ली और वो लड़का जो मुझे सड़क पर भीख मांगता मिला था, मैंने इसको भी अपने मंसूबे में शामिल कर लिया। मैं इसके हाथ पर मैं इस काम के लिए अच्छी खासी रकम रख दी, लिहाजा वो मेरे इशारों पर चलने को राज़ी हो गया। महा की शादी का दिन भी आ पहुंचा। वो पार्लर से तैयार होकर कमरे में बैठी ही थी कि मैंने इस लड़की को इशारा किया जो किसी काम के बहाने से घर में आ मौजूद हुआ था। वो महा के कमरे में गया और इसने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। यही वक्त था जब मैं शोर मचाकर सबको महा के कमरे के बाहर इकट्ठा करना था, लिहाजा मैंने मंसूबे के मुताबिक अम्मा अब्बा को आवाज़ देना शुरू कर दी। महा का कोई दोस्त अंदर मौजूद है, मैंने अम्मा अब्बा को कहा तो वो मुंह पर हाथ रखे हैरान हो गए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब्बा आगे बढ़े थे। अब्बा, में बकवास की क्या बात है? मुझे खुद महा ने बताया था कि वो और जुनेद एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब जुनेद महा के कमरे में घुस गया है। अब्बा ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया। मैं चुपके से एजाज और इसके माँ बाप को भी बुला लाई। ये सब क्या हो रहा है? महा दरवाज़े क्यों नहीं खोल रही? अब्बा ने दरवाजे पर धक्के मारना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और जुनेद को सामने खड़े देखकर सब हैरान रह गए। अब्बा ने आगे बढ़कर इसका गिरबान से पकड़ लिया और पूछा कि कौन है तू और क्या लेने आया है? जहाँ मुझे महा ने बुलाया था वो मुझसे आखिरी दफ़ा मिलना चाहती थी। इसने वही कहा जो मैंने इसे बताया था। अब्बा का हाथ घूमा और एक ज़ोरदार थप्पड़ जुनेद के मुंह पर पड़ा था। मैंने जुनेद को इशारा किया वहाँ से निकलने की करे। अब अम्मा की जानब बढ़े तो जुनेद मौके से फ़ायदा उठाकर वहाँ से खिसक गया। ये सब क्या है? अब्बा ने दहाड़ कर इससे पूछा तो वो मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। मैं इस शख्स को नहीं जानती, वो झूठ बोल रहा है। महा ने साफ इनकार किया तो अब्बा इस शख्स की जानब बढ़े, मगर वो वहाँ पर मौजूद होता तो अब्बा को दिखाई देता। अब्बा, महा झूठ बोल रही है। मैंने खुद इसे इस लड़के के साथ कई दफ़ा छत पर मिलते देखा है। अब्बा ने बेयकीन नज़रों से मेरी जानब देखा। महा के ससुराल वाले भी हैरान और बेयकीन थी। ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अम्मा आगे बढ़कर बोली थी, कोई शख्स ऐसे ही मुंह उठाकर शादी वाले दिन दुल्हन के कमरे में तो नहीं घुस सकता। यकीनन इसका महा से कोई न कोई तल्लक है। एजाज ने गुस्से से अपना सहरा नोच कर ज़मीन पर दे मारा। मैं ये शादी नहीं करूँगा। मेरी बात सुनो, आज बार मेहमान मौजूद हैं, मेरी बदनामी हो जाएगी। तुम मेरी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकते। मैं यकीन से कहता हूँ कि इसके खिलाफ कोई साजिश की है। अगर अब्बा को ज़रा सी भिनक पड़ जाती, किसी और की नहीं बल्कि अब्बा की दूसरी बेटी की साजिश है, तो मेरा क्या बनता? मगर अम्मा अब्बा के तो वहमो गुमान में भी ना होगा कि मैं इनकी सकी बेटी अपनी सकी बहन के साथ सब कुछ करूँगी। तो क्या करूँ चचा? मैं अपने आप को बेबस पाता हूँ। ऐसी लड़की को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आजाज की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। कोई भी गैरतमंद इंसान बर्दाश्त न कर सकता था। अब्बा चुप हो गए और अपना सर पकड़कर बैठ गए। आप लोग महा के बजाय जोहा को रुखसत कर दें, ले जाएं। घूंघट में किसी को मालूम भी ना होगा दुल्हन कौन है। अब्बा बोले और एजाज के बाप के सामने हाथ जोड़ दिए। इसके माँ बाप खुद ही एजाज को मनाया और अब्बा को खुशखबरी सुनाई तो मेरा दिल तो हवा में उछलने लगा। बाकी के मामलात बड़ी जल्दी निपटा लिए गए। अम्मा ने महा के जिस्म से जोड़ा झपट कर उतारा और मुझे पहनने को कहा तो मैं पहले से ही तैयार थी, लिहाजा जोड़ा फटाफट जेब तन करके महा के जेवरात भी लेकर पहन कर बैठ गई। निकाहवान ने निकाह शुरू किया तो मैंने हंसी खुशी हाँ कर दी और रुखसत होकर एजाज की दुल्हन बनकर इसकी ज़िंदगी में चली आई। मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। मैं जो चाहती थी वो हो गया था। मैं एजाज की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी। इसके लिए मुझे अपनी बहन को रुसवा करना पड़ा था, मगर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मुझे ये कीमत अदा करने पर भी कोई ख़ास अफसोस ना था।
बल्कि अम्मा अब्बा की नज़र में मैं मज़ीद मोतबर बन गई थी, क्योंकि मैंने इनकी इज़्ज़त की खातिर कुर्बानी दी थी। जबकि ससुराल में भी मुझे अच्छा मुकाम मिला था, क्योंकि मेरी वजह से इन्हें खाली हाथ वापस नहीं आना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी खिदमत गुजारी से जल्द ही अपनी सास ससुर और एजाज का दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगी। मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। माहा को सामने देखकर मैं चौंक गई। मुझे इसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी, जबकि आंसुओं के निशान भी मौजूद थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो माहा? मैंने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। अम्मा अब्बा ने मेरी ज़िंदगी अजाब बनाकर रख दी है। वो मुझे नाफरमान बेटी का खिताब दे चुके हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कोई भी मेरा यकीन करने को तैयार नहीं। आज उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास जाने का कोई और ठिकाना नहीं। मैं जल्द ही अपना कोई इंतज़ाम कर लूँगी और इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊँगी। क्या तब तक मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ? मुझे अपनी बहन पर रहम आ गया। आखिर वो ये सब कुछ मेरी वजह से ही सह रही थी। इसकी ज़िंदगी को दुख और कर्ब से भरने वाली मैं ही थी। अपनी खुशी को पाने के लिए मैंने इसको इस नहज तक पहुँचाया था, तो कम अज़ कम मैं इसके लिए इतना तो कर सकती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, तुम अंदर आ जाओ। मैंने माहा को अंदर दाखिल होने का रास्ता दिखाया। मगर माहा, एक बात का ख्याल रखना, मेरे सास ससुर को ये न पता ना चले कि तुम इस घर में हो, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ किसी सूरत बर्दाश्त ना करेंगे। जिस लड़की ने इनके बेटे को ठुकरा कर किसी और लड़के से अपना तल्लक जोड़ा, वो इनके घर में ठहरे, ये तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे। माहा ने इस बात में सर हिला दिया। मैं इसे दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियों से ही ऊपर छत पर ले गई। इसे छत वाला कमरा रहने को दे दिया। मेरे सास ससुर घुटनों में मसले की वजह से छत पर न जाया करते थे। आज मैं खुद ही बात करके इसे समझा दूंगी। मैंने यही सोचा था कि जब तक मेरे सास ससुर को पता ना चले, मैं भी इनको इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आधी रात को शोरगुल से मेरी आवाज़ खुली थी। एजाज बिस्तर पर मौजूद न था, जबकि माहा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो न जाने क्यों चीख चिल्ला रही थी। मैं घबरा कर बाहर निकली तो अपने सास ससुर को सहन में खड़े पाया। वो हैरान होकर आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश में थे। मैं इन्हें ऐसे ही छोड़कर फ़ौरन छत की जानब भागी थी। जो ही माहा के कमरे में गई तो एजाज और माहा को आमने सामने खड़े पाया देखकर चौंक गई। एजाज गुस्से में भरा हुआ था। ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी जुर्रत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की? इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। मैं घबरा कर आगे बढ़ी थी, और दरअसल आप बहुत देर से आए तो मैं बताना भूल गई थी कि माहा को मेरी मदद की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसे ऊपर वाला कमरा रहने को दे दिया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम मेरी इजाज़त के बगैर कैसे इसको यहाँ रख सकती हो? भला वो गुस्से में आग भगोला था। अच्छा बस आज की रात रहने दे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि माहा सुबह होते ही यहाँ से चली जाएगी। मैंने एजाज का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो मेरे साथ नीचे चलो। वो मुझे हुक्म देता तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरा, तो मैं भी इसके पीछे चल दी। मेरी बात सुनो। माहा ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी जानब खींचा। तुम्हें मालूम है कि वो आधी रात को छत पर क्या करने आया था? माहा ने सरगोशी की तो मैं चौंक गई। वो हमसाई औरत को अपने सीने से लगाए बैठा था। माहा के अल्फाज सुनकर मेरे इर्द गिर्द धमाके हुए। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरे शोहर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम रख रही हो? मेरा खून गुस्से से खोल उठा था। मुझे इल्ज़ाम रखने की क्या ज़रूरत है? मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। इसे कब मालूम था कि मैं कमरे में मौजूद हूँ? वो तो मैं अचानक बाहर निकली तो हमसाई औरत के साथ देखा। मुझे देखते ही वो दीवार कूद कर भाग गई, जबकि एजाज गुस्सा दिखाने लगा। वो दरअसल अपने करतूत पर पर्दा डालने के लिए गुस्सा दिखा रहा था। मैंने बेयकीन नज़रों से माहा की जानब देखा। वो मेरा घर ख़राब करने की कोशिश क्यों कर रही थी? शायद इसे इस बात का दुख था कि इसकी जगह मेरी शादी एजाज से हो गई थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो देखो, भागते हुए इसके पाँव से पायल गिरी थी। इसने दीवार के पास पड़ी पायल हाथ में उठाकर मुझे दिखाई, मगर मेरा दिल मानने को तैयार ना था। एजाज ऐसा नहीं था। वो तो नहायत सुलझा हुआ और अच्छा इंसान था। कहीं तुम इस पर इल्ज़ाम तो नहीं रख रही? मैंने एक बार दोबारा तस्दीक करना चाही। मेरी प्यारी बहन, किसी पर भी इल्ज़ाम रख देना इतना आसान नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गई थी। मेरे सास ससुर सहन में ही चरपाई पर मौजूद थे। कौन है ऊपर? वो हैरत से पूछने लगे। ऊपर माहा है। मैंने इसे एक रात के लिए पनाह दी थी। इसने एजाज को किसी लड़की के साथ रंग रलियां मनाते देखा है। ये क्या कह रही हो? वो खुद पकड़ी गई तो इसका मतलब एजाज पर भी इल्ज़ाम रखेगी? वो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला ले रही है, क्योंकि हम इसके बजाय तुम्हें ब्याह कर लाए हैं। मुझे अपने ससुर की बात पर एतबार आने लगा।
वाकया यही सच था। माहा सिर्फ एजाज से शादी न होने के सदमे में ये सब कह रही थी। मैंने सोच लिया कि मैं सुबह होते ही इसे यहाँ से चलता करूँगी। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। ये इस वक्त कौन आ गया? मेरे ससुर चौंकते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े थे। दरवाज़ा खोलते ही एक खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई और सहन के बीच बीच खड़ी हो गई। आधी रात को एक लड़की को यूं आते देखकर मैं हैरान थी। अंकल आंटी आखिर कब तक ये जुल्म मुझ पर करते रहेंगे? आप मेरे शोहर की दूसरी शादी करके ले आए, जबकि मैं इससे चोरों की तरह मिल रही हूँ। आज हमें छत पर किसी ने देख लिया था और एजाज को इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी, जबकि मेरा इनसे मिलने का पूरा पूरा हक है। मैं फटी आंखों से इस लड़की की तरफ देख रही थी। मैंने अपने सास ससुर की तरफ हैरत भरी नज़र डाली तो वो कुछ खिसाने से हो गए। ये लड़की क्या कह रही थी? एजाज भी कमरे से निकल आए। तुम यहाँ क्यों आई हो कौसर? मैंने तुम्हें मना किया था कि कुछ दिन सब्र कर लो। आखिर और कितना सब्र करूँगी? एजाज, सब्र का मुझे कोई ख़ास सिला ना मिला। बस ये हुआ कि मेरे चुप रहने से आपके माँ बाप आपकी दूसरी शादी करके लड़की ले आए। मैं अब मज़ीद चुप नहीं रह सकती और ना ही मैं तुमसे चोरों की तरह यूँ छुप छुप कर मिल सकती हूँ। मैं फटी आंखों से बार बार इसकी चेहरा देख रही थी। माहा भी उतर के नीचे चली गई। ये सब क्या है? मैंने एजाज की तरफ फटी हुई आवाज़ से पूछा तो वो बोला, ये मेरी बीवी है। मैं और कौसर एक दूसरे को पसंद करते थे और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है, मगर अम्मा अब्बा ये मानने को तैयार ना थे, क्योंकि उन्होंने अम्मा की अपनी पक्की सहेली को ज़ुबान दी थी और वो इनकी बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। लिहाजा मैंने और कौसर ने छुप कर निकाह कर लिया था। अम्मा अब्बा को ये बात मालूम नहीं थी कि वो मेरी शादी कौसर से हरगिज़ नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने माहा के लिए रिश्ता दिया और वहाँ मुझे बारात ले जाने पर मजबूर किया। मैंने अम्मा अब्बा की बात मानी और इनकी लाज रखने की खातिर बारात लेकर पहुँच गया। मगर वहाँ जो कुछ हुआ, इसके बाद मैं दिल ही दिल में खुश था। मैं चाहता था कि मैं बारात वापस ले आऊँ, मगर अम्मा अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ से बारात लिए बगैर वापस जाऊँ। ऐसी सूरत में इन्हें मेरी शादी कौसर से करनी पड़ती, जबकि ये लोग कौसर को नापसंद करते थे, क्योंकि कौसर एक नर्स है और अम्मा अब्बा के ख्याल में वो किरदार की अच्छी नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका किरदार किस कदर पुख्ता है। कम अज़ कम माहा से तो बेहतर ही किरदार की मालिक है। इसने माहा पर गहरी चोट की तो माहा के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया था। अपनी बकवास बंद करो। तुम होते कौन हो मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाने वाले? तुम खुद एक बदकिरदार इंसान हो जो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी जगह शादी करने चला आया। अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत थी तो अपने माँ बाप के सामने डट कर खड़ा होना था। किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे हलक से फटी फटी आवाज़ निकली। सदमा था कि कम होने में ना आ रहा था, जबकि आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैंने कितनी बुरी तरह शिकस्त खाई थी। जिसको पाने के लिए इतने पापड़ बेले थे वो तो मेरा हो ही ना सका। वो मुझे धोखा दे रहा था, जबकि छुप छुप कर अपनी पहली बीवी से मिल रहा था। ऐसा कमज़ोर शख्स जो माँ बाप के सामने भी अपनी बीवी का साथ ना दे सका, और मेरा क्या साथ देता? मैं तो इसकी मनचाही भी ना थी। मुझे क्या ज़रूरत है किसी के ऊपर इल्ज़ाम रखने की? एजाज बोला तो मैंने हाथ के इशारे से इसे रोका। जो कुछ तुमने देखा वो सब मेरा किया धरा था। मैंने किराए के लड़के को माहा के कमरे में भेजा था ताकि मैं शादी रुकवा सकूं। मैंने इकरार किया तो माहा समेत सभी चौंक गए। ये क्या कह रही हो तुम? माहा ने हैरत से मुझसे पूछा। हाँ माहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हालांकि मैं माफ़ी के काबिल नहीं, मगर मैं चाहती थी कि मेरी ये शादी एजाज से हो जाए। मैं दिल ही दिल में इसको पसंद करती थी। रोज़ पसंद की खातिर ही मैंने ये ड्रामा रचाया और लड़के को पैसे देकर तुम्हारे कमरे में भेजकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि मैं ये शादी रखवाना चाहती थी। बाकी के हालात तो तुम्हारे सामने ही थे। अम्मा अब्बा ने खुद ही मुझे शादी के लिए राज़ी किया तो मैं भला क्यों राज़ी ना होती? मैं तो पहले ही तैयार थी। मैंने शर्मसार लहजे में बताया तो माहा ने अपना सर पीट लिया। अगर तुम्हें एजाज पसंद था तो तुम मुझे एक बार तो कहती। मेरी बहन, मैं तुम्हारे रास्ते में हमेशा के लिए हट जाती। एक ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि मेरी बहन को कोई पसंद आए और मैं इसकी राह में रुकावट साबित हूँ। माहा की बात सुनकर मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया था। मैंने अपनी बहन पर इतना सा भी एतबार ना किया था। मैं रोती हुई इसके गले जा लगी। मुझे देख लो, मुझे अब मेरे किए का क्या सिला मिला? मेरा शौहर पहले से ही शादीशुदा है। तुमने अपनी बहन के साथ किया वो भी बहुत गलत है। जब तुम अपनी बहन की ना बनी जिसके साथ तुमने सारी ज़िंदगी गुजारी, तो तुम मेरी क्या बनोगी? तुम्हें सबकी मौजूदगी में बाकायदा होशो हवास तलाक देता हूँ। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट गया था।
یہ تعلق اتنا کچا تھا کہ اس نے ایک جھٹکے میں ہی سب کچھ توڑ دیا۔ نہ اس نے کسی بات کا انتظار کیا، نہ مجھے منانے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے گناہ کی معافی مانگی، بلکہ کھڑے کھڑے طلاق دیتی تھی۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی۔ اعجاز کے اماں ابا طلاق کا لفظ سنتے ہی اپنے چہرے چھپائے اپنے کمروں میں جھانک گھسے تھے، جبکہ اعجاز اپنی پہلی بیوی کو لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں اور ماہا ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی تھی۔ میں طلاق کا تمغہ لیے ماہا کے ساتھ گھر آ گئی۔ میں نے رو رو کر اماں ابا کو بھی اپنی کارستانی سنا دی۔ وہ بھی حیران تھے، مگر میری طلاق کا سن کر وہ سکتے میں رہ گئے۔ میں نے جو کیا مجھے سزا مل گئی تھی۔ میں ماہا سے معافی مانگ کر تھک چکی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا زویہا، تم نے جو کیا تمہیں اس کا جواب مل گیا، بلکہ میں تو تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری زندگی برباد ہونے سے بچا لی اور میری جگہ اپنی زندگی برباد کر لی۔ اگر میری اعجاز سے شادی ہو بھی جاتی تو میں ایک ہفتے بعد ہی طلاق لیے واپس لوٹ آتی۔ ماہا کے الفاظ سن کر میں سخت شرمندہ ہوئی اور روتے ہوئے اس کے گھرے سے جا کر لگی۔